I think बहुत बड़ा misconception है that people go there just to drink and party. That is not the case. ये फुल मून पार्टी हर 2 हफ्ते होती है Yeah, it happens every 2 weeks. एंड यू नो इट्स पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो. जब भी आप वहां जाएं ढेर सारा कैश लेके मत जाएं. आप फॉरेक्स कार्ड अपने साथ रखिए जो कि आप यूज कर सकते हैं. Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil. रेडियो सिटी 91.1 पर कह सकता हूँ कि ये मेरा सबसे एक्साइटिंग वाला सेगमेंट होता है. व्हाई? बिकॉज आई हैव टू ऑलवेज नो कि मैं कहाँ जा सकता हूँ. अब मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि ये ईयर ऑफ 2024 में आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी यूजिंग all the wisdom of Ananya Shukla. Hi Salil, it's great to be back with a few more experiences, few more trips in my bag. So yeah, really excited for this one. Yeah, actually you've been quite a trooper यार. एक बात बताओ, what's been going on? क्या सब लोग ने ये डिसाइड कर लिया था कि ये जो अभी साल को तो काफी समय हो चुका है, but did they all decide कि भाई this is the year of travel? I think yeah, a lot of people are traveling and every place that you see in India is crowded with people, and because of summer vacations coming up and people wanting a colder environment, I think everyone's left their hometowns and gone to the mountains. So yeah, you can see the rush everywhere. But there are a lot of like non-crowded places also which people don't know much about, so they are crowding in the touristy places, which is why you can see right now कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है. You know, but I think also भीड़ से ये हो गया कि मुझे सडनली रियलाइज हो गया कि सबके पास बहुत ज्यादा पैसा है. I think people are finally realizing कि वो पैसा यूज कैसे करना है. I think पहले बहुत once in a 3 month period या once in a 4 month period होता था कि लोग निकलते थे अपने घर से, सोचते थे कि कहीं निकलेंगे. I think now it has become a more frequent thing that people want to use their money for this. So yeah. So brother, I want to decide to go somewhere also myself. और एक आध ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ने ऑलवेज बड़ी डिस्कशंस की हैं. नाउ बाय द वे वी ऑलरेडी वेंट टू स्पेन रिसेंटली. आई मीन थैंक्स टू अनन्या शुक्ला जो फिरगुन ट्रैवल्स के बहुत सारे लोगों को लेके जाते रहते हैं ऑलवेज. बट द बिग डिस्कशन नाउ इज अनदर ट्रिप दैट एवरीवन इज बीन टॉकिंग अबाउट अ लॉट, स्पेशली इंडियंस लव दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड थाईलैंड. और थाईलैंड एज ऑफिस कॉर्पोरेट ट्रिप्स भी बड़े यूज होते हैं, बट इवन एज फैमिली मेरे जैसे छोटे बच्चे हैं वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं बिकॉज वहाँ पे एनिमल्स हैं, ग्रीनरी है, एंड यू नो इट्स पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो. सो लेट्स गो इनटू थाईलैंड टुडे एंड जरूर हमें बताएं कि क्या एक आइडियल सिनेरियो होता है विद द फैमिली. I think Thailand is a place firstly for all seasons and for all age groups. वो बेस्ट चीज़ होती है थाईलैंड के बारे में, and it's not at all expensive, so yeah, it doesn't burn your pockets. And when you want to go to Thailand, you have options of exploring 4-5 places within 7-8 days, which is the best part of it कि आपका पूरा environment change हो सकता है 7-8 दिन के अंदर. You start with a city like Bangkok, which has all the perks of being a very nice city. You can shop, you can explore. Then you can hit all the islands which are possible in Phuket and Krabi. Then you can party in Koh Phangan, which has like a full moon party happening every 2 weeks. तो वो one of its kind party होती है. तो you have everything possible for all age groups over there. अच्छा, ये फुल मून पार्टी हर 2 हफ्ते होती है? Yeah, it happens every 2 weeks. एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि थाईलैंड इज नॉट अ वेरी हैप्पी फैमिली फ्रेंडली प्लेस. तो इसकी बड़ी डिस्कशन रहती है. वुड यू से दैट दैट परसेप्शन चेंज हुआ है इन द लास्ट फ्यू इयर्स? वो परसेप्शन बहुत चेंज हुआ. आई थिंक हमारे पास जितनी रिक्वेस्ट अभी आती हैं, फैमिलीज वांट टू गो ऑन अ कस्टमाइज्ड ट्रिप, एंड मोस्टली समर वेकेशंस में लोग अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं. वहाँ का कल्चर इज समथिंग दैट पीपल रियली वांट टू एक्सपीरियंस. देयर आर टन्स ऑफ टेम्पल्स, टन्स ऑफ animal kingdoms, water parks, zoos over there. You can see a lot of different animals and बहुत सारी touristy चीज़ें हैं. It's not just party, and that is just probably 10% of what Thailand is and what Thailand is known for. I think बहुत बड़ा misconception है that people go there just to drink and party. That is not the case. It's an ideal place to go with your children because you will not find it very crowded, and it's a very peaceful place for your children to observe and see a new culture. I think वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक young age में कि आप अपने बच्चों को बाहर लेके जाएं and they get to see कि how the world is functioning. Let's talk about an ideal trip. अगर 4-5 दिन के लिए लोगों को जाना है, how much money should we have and what are the must do's in Thailand? So if you ask me for a 4-5 day itinerary, I would suggest to go to Phuket and Krabi because they are absolutely beautiful and peaceful at the same time. If you want to include expensive shopping and like थोड़ा डेकोरेटिव आउटकम दिखना है आपको अपनी ट्रिप में, तो आप बैंकॉक भी जा सकते हैं. बट आई वुड रियली सजेस्ट टू कवर फुकेट एंड कराबी फर्स्ट बिकॉज दे हैव अ वेरी ऑफ बीट एक्सपीरियंस. You can explore all the islands from there, which is not possible in Bangkok. So if you can cover only 2 places, I would suggest Phuket and Krabi. But if you want a perfect itinerary, you can start in Bangkok, you can head to Phuket, then to Krabi, and then come back from there. The best part is all these 3 places have airports, so you can take a flight to any place. महंगे होते हैं आजकल क्या प्राइसिंग वाइज? पहले थाईलैंड काफी एक अफोर्डेबल डेस्टिनेशन था. क्या आज भी अफोर्डेबल माना जाता है? It is affordable. एक तो firstly visa is free for Indians, which is the best part. You don't have to get into the hassle of getting a visa.
Secondly, you have direct flights from Delhi, and if you really want to understand the pricing of flights, मैं कुछ दिन पहले चेक कर रहा था, दिल्ली से पुणे की फ्लाइट वन वे was 10,000, दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट was 11,000. डोमेस्टिक फ्लाइट प्राइसेस इतने बढ़ गए कि ये सब इंटरनेशनल डेस्टिनेशन अब एक्सपेंसिव नहीं लगती हैं लोगों को. So it's really affordable on the pocket because international destinations में major price जो आपका लगता है that is your flight cost. उसके बाद वहाँ का इकोनॉमी यहाँ की इकोनॉमी को अगर आप कंपेयर करो तो यू डोंट रियली हैव टू शेयर अ लॉट. हर चीज़ अफोर्डेबल है वहाँ फॉर इंडियंस एंड अ लॉट ऑफ इंडियंस ट्रैवल देयर. बिल्कुल बिल्कुल, और लॉट ऑफ इंडियंस वहाँ पे रहते भी हैं. मस्ट डू. लोग पहले बैंकॉक शॉपिंग के लिए बड़ा जाते थे, आज भी क्या शॉपिंग डेस्टिनेशन माना जाता है. यहाँ पे थोड़ा डर भी है कि फेक का सामान भी बहुत मिलता है. इंदिरा मार्केट आई रिमेंबर आई यूज्ड टू गो देयर, वहाँ पे बड़ी शॉपिंग करते थे. और बहुत सारी और जगहें थी, बहुत टाइम से नहीं गए हैं. आज भी क्या वो बड़े हैं? अगर आपको शॉपिंग करनी है तो बैंकॉक इज़ अ रियली नाइस प्लेस फॉर यू बिकॉज आपको फ़ोन्स कपड़े सब कुछ बहुत सस्ते में मिल जाता है वहाँ पे कंपेयर टू इंडियन प्राइसेस. एंड बहुत लोग हमारी ट्रिप पे भी आते हैं, वहाँ से फ़ोन्स लेके वापस आते हैं. और इन जनरल आप थाईलैंड के लोगों को देखोगे 90% पीपल यूज आईफोन्स एंड द रीजन इज बिकॉज वहाँ पे वो चीज़ सस्ती है. बट यार वहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल है, मतलब लोगों को ये भी डर लगता है कि कहीं फेक माल तो नहीं मिल रहा. नहीं, सो देर आर एक्सक्लूसिव मॉल्स फॉर ऑल ऑफ दीज वेयर यू कैन गो. यू डोंट हैव टू बाय फ्रॉम लोकल मार्केट्स. वहाँ से ऑब्वियसली रिलायबल नहीं होगा, बट इफ यू गो टू वेरी एक्सक्लूसिव मॉल्स, एक्सक्लूसिव शॉप्स फॉर ऑल ऑफ दिस, यू विल डेफिनेटली गेट गुड आइटम्स. एंड दे ऑल्सो गिव यू वैट रिटर्न कि आप जहाँ से भी शॉप करते हो उसका वैट आपको वापस एयरपोर्ट पे मिल जाता है. सो दैट्स अ बिग सेव फॉर यू. सबसे बड़ी चीज मेरे को जब भी मैं थाईलैंड जाता था, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत खूबसूरत होते थे वहाँ पे, कलरफुल वाले, स्पेशली ऑरेंजेस वहाँ पे. तो फूड के मामले में फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए सही है ना? हाँ, आई थिंक नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो जन्नत है वो, बट वेजिटेरियंस के मन में एक मिथ रहता है कि वहाँ जाके वेज खाना नहीं मिलेगा. सो बिकॉज सो मेनी इंडियंस आर देयर, हर कॉर्नर पे देयर इज एन इंडियन रेस्टोरेंट अवेलेबल. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट थाईलैंड इज की मैंगो सीजन 12 महीने रहता है, सॉरी. तो आप कभी भी मैंगो, स्वीट मैंगोज एक्सपीरियंस कर सकते हैं. मैंगो स्टिकी राइस इज अ वेरी फेमस डिश ओवर देयर, जिससे आपको प्यार हो जाएगा वहाँ जाते ही. आई थिंक मैं जब भी जाता हूँ हर दिन एक मील में हो ही जाता है वो. एंड वेजिटेरियन ऑप्शंस के लिए आपके पास बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे वेज ऑप्शंस हैं, बिकॉज योर क्राउड इज इंडियन, सो दे हैव टू केटर टू इट अगर उन्हें अपना टूरिज्म चलाना है. डोंट्स भी बहुत सारे होते हैं अनन्या. व्हाट इज योर डोंट की भाई ये बिल्कुल नहीं करना है थाईलैंड में? सो वन थिंग विच आई वुड सजेस्ट फॉर एनी इंटरनेशनल ट्रिप, बट स्पेशली फॉर थाईलैंड, इज कि जब भी आप वहाँ जाएं ढेर सारा कैश लेके मत जाएं. आप फॉरेक्स कार्ड अपने साथ रखिए जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. थाईलैंड में बहुत जगह आप इंडियन करेंसी भी एक्सचेंज करा सकते हैं विद इन द सिटीज़, तो आप वो भी अपने साथ रख सकते हैं. किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में आपको हेल्प मिल जाएगी. दूसरी चीज़ कि बहुत ये यंग क्राउड के लिए डायरेक्टेड है कि आप जहाँ भी जा रहे हो अपना सामान थोड़ा सेफ रखिए, बिकॉज बहुत बार हम एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे सामान हमारा मिसहैंडल हो जाता है. तो आप बहुत सोच समझ के जाइए हर जगह एंड बी सेफ व्हेन यू पार्टी. आई थिंक बहुत रिसेंटली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस जहाँ पे लोगों के ड्रिंक्स एंड खाने में कुछ कुछ चीज़ें मिली थी जिसकी वजह से बहुत एडवर्स इफेक्ट्स उन पे हुए थे. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट पीपल ऑफर एंड ट्राई एंड नॉट टेक एनीथिंग दैट अदर पीपल ऑफर. आप खुद से अपनी चीज़ें ऑर्डर करिए, खुद से बनाइए एंड खुद से खरीदिए. आप वहाँ पे स्ट्रेंजर्स के भरोसे पे मत रहिए इस चीज़ पे. दिल चाहता है वाला सीन हो जाएगा ना, जैसे हमने देखा था, है ना? बिल्कुल सैफ अली खान वाला. बट ऑन द होल इट्स क्वाइट अमेजिंग. एनी काइंड ऑफ अमाउंट आपको लगता है कि पर पर्सन अगर 4-5 दिन वहाँ पे चाहिए, कितना खर्चा हो सकता है पर पर्सन? Say about for 5 days. Yeah, about for 5 days you will spend around 25 to 30,000, which is very pocket friendly, and उससे ज़्यादा खर्चा आपका नहीं होगा. वहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता है. वाओ, ये तो परफेक्ट वेकेशन है. थैंक यू सो मच अनन्या फॉर जॉइनिंग अस. भाई थाईलैंड इज वेरी कूल फॉर यू, और मुझे लगता है कि आजकल थाईलैंड, श्रीलंका, ये सारी जो कंट्रीज हैं हमारे आजू बाजू यार, क्योंकि अब वीजा फ्री हो गई हैं, तो बहुत सही है, जाना ही चाहिए. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.